So the case study provided by CBSE. Now this one is from societal impact, as well as some questions are from networking. That we will not do now. That we will do in term two. Sumit has to prepare a project on Swachh Bharat, Shresht Bharat, SBSB. He decides to get information from the internet. He downloads three web pages, web page 1, web page 2, web page 3, containing information on the given topic. He read a paragraph on from web page 1 and rephrased it in his own words. He finally pasted the rephrased paragraph in his project. He downloaded three images of from web page 2. He made a collage of his project using these images. He also downloaded an icon from web page 3 and pasted it on the front page of his project report. Now, how we are doing? So, all three are wrong, but first one we are doing paraphrasing, means we are pasting a part of the paragraph by changing some words in our project. The second one will be, you can see here, step 1. This is step 1. An example of the answer is paraphrasing. So this is your answer. Paraphrasing means you are taking a paragraph from somebody else's web page and you are just changing some words and presenting in your name. Paraphrasing. Normally, I think 90% people who are designing the project, only some are writing on their own. Mostly what I have seen is seeing some formats from somewhere and then changing the formats and using complete book writing, complete in your manner, means your pattern, that we are not doing. Now step 2 is the images from the web pages. So images completely you are taking, that is plagiarism. And the last one, a part, icon, only icon in the front page, that is your copyright infringement. So some words you are taking, some icons you are taking, that is copyright infringement. Some paragraph you are taking, then changing it and rephrasing it and using in your name, that is paraphrasing. And the complete write-up, complete image, complete project you are presenting in your name, complete book written by somebody else you are presenting in your name, that is plagiarism. Understood? So these three were there. Now website is a collection of web pages. So these are from your networking chapters. This we will not do. The process of getting web pages, images, files from a web server to local computer is called this will be your A option. So, is called downloading. Now we will do the next one. This is your next case study. HR department of ABC Tech has created following data frame to store data about salaries and bonus paid to their employees. Import pandas as PD, import numpy as NP, dictionary D1 with ename, salary and bonus. Then we are creating a data frame. Choose the Python statement using suitable functions for the following task. Display the columns sal and bonus. Anyone who can give the answer? Column names we are using with LOC. So it will be your B option. That is sal and bonus they wanted to see. So sal and bonus. We cannot use with ILOC because ILOC you have to use the positional value. You cannot use the label. The position you have to mention here. By using the index value and all you can mention. Now next one is display the details of employee Kavita. Now here you can see you have to display this first one. E-name should be Kavita. So here check one will be here. Now condition you are checking. So df1.loc
Now ename double equals to delta. So here also LOC function we will use here, and double equals to, because we are checking and then we are displaying that details. Clear? We could have used the other one also, df1 in bracket df1 dot ename double equals to, here a single equals to is given, so double equals to you have to use. Next, display the detail of the last employee. So this one is easy. Last employee, I think everybody knows how to display the last one. Tail you will use and in bracket y. Next, add a new column named email with the value this. So column name, how to add it? We are writing the data frame name in square bracket, the column name in single quotes equals to, then the datas which are provided, value which are provided. These values you have to write here. If it is clear, all right. If it is not clear, just ask me your doubts. I will clear it. Next will be write a Python statement to print the details of employees having salary more than 50,000. So already we have seen two methods. We have seen one is directly using df in bracket df1, the name of the data frame is df1 here. So df1 in bracket df1 dot sal greater than equals to 5,000. It should be 50,000. Here 50,000 is written. So it should be 50,000, or here you correct it to 5,000. Here 5,000 you are using, so here also 5,000. Okay. Now if you want to use LOC, then also greater than equals to you have to use in that. Same thing will be done. So this practically we will see afterwards. Today let us solve all the questions first. So one data frame we have done, one societal impact we have done. Now let us do one more of data frame. So this is your question number 19. These questions are provided by CBSE only for practice. Now Naman has created the following data frame, climate, to record the data about climatic condition of 4 years. 2017, 18, 19, 20. Which of the following code snippet will return the maximum temperature and rainfall for year 2018 and 2019? So 2 years you want, 2018, 2019. So two methods will be there, or you can say three methods will be there. Directly using the slicing you can use it, or using LOC, or using, okay, if you use LOC method you can give only the labels. Clear? And if you give ILOC method, then you can give the start and stop, that is the positional value. So here you can see only you have to give the maximum temperature and rainfall, only these two columns. So row is starting from, this is 0, 1, from 1 it is starting till 2019, and column will be your max temperature and rainfall. So you cannot use directly. So obviously last two, I think this one 1:3, ILOC 1:3 will be your rows, but here only max temperature and rainfall. Min temperature also it is showing. Options, actually that option is not given, only with max temperature and rainfall of only 2018 and 19. It is not given. That's why this problem came. Okay, so whichever is the most possible answer that they have marked here. So they have marked here this is not exactly correct, because it will show all the three columns. All the three columns it is showing. We will check it out, this one. Next, display the temperature difference between max temp and min temp for all the rows. Now this is easy. For all the rows means you don't have to mention all the rows you have to take. So the name of the data frame is climate, and max temperature, this will give you the complete column of max temperature minus climate of min temperature. So this one is easy. This one directly it will do it. I will show you with practically, I will show you this one.
Means this will take all the values of this max temperature. This will take all the values, then it will subtract each one and it will show the output. Next, to display two rows from the top in the data frame, which of the following statement is correct? Now this everybody can do it. The answer also is visible here, because whenever you want to display from top, head you will write, two rows in bracket you will write 2, and in front the name of the data frame will be there. So name of the data frame is climate dot head in bracket 2 will be there. This space is not required. So this is your answer. D option is your answer. Head and tail, many questions are there. Data frame, 20 questions you have already seen in the new CBSE sample paper. 20 questions will be there from data frame. So we will practice more questions from data frame. 6 question of series and 6 question of pie plot, and 15 question from societal impact, and 7 questions from general pandas. Pandas means all. In pandas, general, from series and data frame, all the general questions, full form of pandas, who invented pandas, all those questions are there. How to install it, how to use import command in pandas, so all those questions will come. Next, which of the following statements will give the exact number of values in each column of the data frame? In each column, now here one problem was there is when you are counting the columns, that time, now here 2 A, B and D. A directly it will give, B with 0 it will give, and axis equals to index. With this also it will give. Since count is a function, that's why this bracket is compulsory. If it is count is without bracket, without parenthesis, means attribute. No, count is not an attribute, count is a function method. So here with brackets it will work. By default it will count all the rows. So how many value are there in each column, means एक कॉलम में कितने वैल्यूज है उसको रो को काउंट करने से भी पता चल जाता है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को भी काउंट करने से पता चल जाता है. इंडेक्स एक्सेस में इंडेक्स डाल के भी हम करेंगे तो उसमें भी वो रोज को काउंट करेगा. सो यहाँ पे ए, बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले टू रोज फ्रॉम बॉटम. ये तो फटाफट बन जाएगा. माइक ऑन करके आंसर देना शुरू करो. बॉटम मीन्स some questions you should also try. Option D. Option D. D हो जाएगा. Tail in bracket 2. Correct. So this is over. Now next question you will answer. I will not give the answers now. So next question number 18. Zenith has created the following data frame. The name of the data frame is data frame 1. So everywhere I will use this name. Instead of DF, I will use the name which is given in the question. To keep track of data, roll number, name, marks 1 and marks 2 for various students of a class where row indexes are taken as the default value. Roll number 1, 2, 3, 4, name, marks 1, marks 2. Which among the following option will give 90, 95 as output? Tell the answer. Ma'am B. Yes. मैक्सिमम देखो दोनों का मैक्सिमम है ये. Ma'am B. हाँ, मार्क्स 1 का मैक्सिमम, मार्क्स 2 का मैक्सिमम. ठीक है, तो इसमें बी आंसर इज करेक्ट. दैट इज मार्क्स 1 डॉट मैक्स, मार्क्स 2 डॉट मैक्स. ठीक है, और खाली मार्क्स 1 मार्क्स 2 लिखेंगे. अच्छा, इन्होंने सामने मैक्स लिखा है. नहीं, हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं. हमेशा इसमें मैक्स को ऐसे लिखा जाता है. हम लोगों ने ऑलरेडी इसको यूज भी किया है मैक्स को. बी ऑप्शन.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी नीड्स टू नो द मार्क्स स्कोर्ड बाय रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 को चेक करना है। चेक करने के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं, जहां पे भी चेक डायरेक्ट वैल्यूज को चेक करना रहता है। ठीक है, हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें डेटा फ्रेम में एक ब्रैकेट है, ठीक है, डेटा फ्रेम 1 के रोल नंबर में इक्वल्स टू 2, नंबर इक्वल्स टू 2। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो सही है, मेरे को तो ए भी थोड़ा सा सही लग रहा है, ए भी शायद एग्जीक्यूट हो जाएगा। इक्वल्स टू 2, इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो ए वाला मेथड से भी करते थे। सी तो ठीक है, सी तो डॉट करके जो लिखते हैं वो तो ठीक है, कॉलम के नेम में इक्वल्स टू 2 कंडीशन डाल के। इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, हो सकता है एक आध मिस्टेक भी हो सकता है। इसमें क्या क्या लिखेंगे बताओ तो। डेटा फ्रेम को पहले क्रिएट कर लो, मार्क्स नेम के साथ मार्क्स को डाल लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या होता था, इंपोर्ट pandas एज पी। इसके बाद एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग रोल नंबर डाल दे रहे हैं, रोल, और जिसमें हम लोग कुछ रोल नंबर्स डाल देते हैं, और इसके बाद नेम और मार्क्स डाल देते हैं। कंडीशन क्या है, मार्क्स को चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग नेम डाल देते हैं, और नेम में अभी मैं ABC डाल दे रही हूँ, ABC, और हमने मार्क्स यहाँ पे कॉमा करके हमने मार्क्स डाल दिया है। सपोज मार्क्स में हमने 90, 80, 70 डाल दिया है। अब इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ वहाँ पे डेटा फ्रेम 1 नाम दिया हुआ था, तो वही नाम दे देते हैं, डेटा फ्रेम 1 नाम था उसमें, या 2 नाम दे देते हैं, इक्वल्स टू P डॉट डेटा फ्रेम। ये हमने क्रिएट किया, इसमें हम डिक्शनरी को डाल देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी आ जाएगा। हो गया। अब इसको प्रिंट करोगे तो नॉर्मल आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि एक कंडीशन इक्वल्स टू, जैसे मेरे को 80 मार्क्स का डिटेल दिखाना है, तो मार्क्स इक्वल्स टू 80 करना पड़ेगा इसमें। तो हम 2 मेथड से, पहले तो पूरे को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट डेटा फ्रेम 2 लिखना है, तो डेटा फ्रेम पूरे को डिस्प्ले कराने के लिए। अब हमारा जो कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या था कि जिसका मार्क्स इक्वल्स टू 80 है, मार्क्स इक्वल्स टू 80 को डिस्प्ले कराने के लिए बोला गया है क्वेश्चन पेपर में। तो कैसे डिस्प्ले कराते हैं, हम प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद हम डेटा फ्रेम का जो भी नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन को डालते हैं। कंडीशन क्या है, डेटा फ्रेम 2 का मार्क्स इक्वल्स टू 80। ये तुम्हारा ऑप्शन, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, यही ऑप्शन दिया है, डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा फ्रेम डॉट कॉलम का नाम डबल इक्वल्स टू जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, रोल नंबर 2, तो हम लोग भी यहाँ पे रोल नंबर को भी चेक कर लेंगे बाद में। अब यहाँ पे जब हम इसको आउटपुट डिस्प्ले करा रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, एक कोलन डालना भूल गए, यहाँ पे कोलन नहीं डाले हैं, मार्क्स के बाद एक कोलन होगा। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, 80 मार्क्स का पूरा डिटेल आ गया। अब इसका एक सेकंड मेथड, इसको मैं ट्राई कर रही हूँ, ये जब नहीं दिया है उसका मतलब ये एरर शो करेगा। ठीक है, इसको मैं ट्राई कर रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स में डालना पड़ेगा, ओके, कोट्स में मार्क्स लिखना पड़ेगा। ये शायद एग्जीक्यूट, एक बार देख लेते हैं एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, रन करा के। हाँ, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे क्या था, ऑप्शन में यहाँ पे कोट्स भी दिया हुआ है, ये तो दोनों सही हो जा रहा है। ये
ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन सही दिए हुए हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसमें दोनों के लिए नंबर मिल जाएगा बाद में, जब हम लोग उसमें लिखेंगे तो दोनों के लिए नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हम डॉट कॉलम नेम करके लिखते हैं तो भी वो रन हो जाता है, और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में हम कोट्स में कॉलम नेम लिखते हैं तो भी रन हो जाता है, दोनों में रन हो रहा है। अब यहीं पे रोल नंबर इक्वल्स टू 2 का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको रोल नंबर इक्वल्स टू 2 कर देते हैं तो भी वो रन हो जाएगा। यहाँ पे हम रोल जो भी कॉलम का नाम दिया रहेगा, रोल नंबर रहेगा तो रोल नंबर डाल दो, 2 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम रोल नंबर दे देते हो, सपोज रोल नंबर, तो यहाँ पे भी रोल नंबर दे दो, और यहाँ पे भी रोल नंबर इक्वल्स टू 2 में भी रन हो जाएगा, रोल नंबर इक्वल्स टू 2। अब इसको भी रन करा दो, ये भी रन हो जाएगा। ये देखो 2 के लिए, रोल नंबर 2 के लिए, दोनों के लिए रन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जो डाउट था वो क्लियर हो गया। जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो तुम लोग अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल डिलीट द थर्ड कॉलम। डिलीट करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? हम एक ड्रॉप हमने देखा था, एक डेल देखा था, एक पॉप देखा था, रिमूव देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ड्रॉप हमेशा बाद में होता है, ड्रॉप यहाँ पहले नहीं होता है। डेल हो सकता है पहले, तो ये सही है, डेल वाला सही है। इसका क्या है आंसर? हाँ, आंसर इसका ए और बी। पॉप करके भी हटाते हैं, डेल करके भी हटाते हैं। ड्रॉप अगर पीछे यहाँ डॉट ड्रॉप लिखा रहता तो होता रन, पॉप तो पीछे होता है, डॉट पॉप होता है। पॉप एक फंक्शन है, मेथड है पॉप। ठीक है, तो पॉप करके भी ये हम लोगों ने लिस्ट में भी यूज किया था। हम पॉप करके फिर जिस एलिमेंट को, जिस कॉलम को हटाना है उस कॉलम को यहाँ पे तुमने मेंशन किया तो डेटा फ्रेम का वो कॉलम हट जाएगा। और डेल को हम आगे लगाते हैं, उसमें लिस्ट में भी हम डेल को आगे लगा के करते थे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन ये सही होगा इसका। नेक्स्ट, which of the following command will display the total number of elements in the data frame? इसका आंसर तो पता है, इसको तो 2-3 बार किए। कैसे होगा बताओ इसका आंसर? आंसर बताओ, रीजन भी बताओ कैसे होता है। शेप क्या करता है? जल्दी। रोज कॉमा कॉलम्स दिखा हाँ, शेप जो है वो रोज कॉमा कॉलम्स, कितने रोज है कितने कॉलम्स। अगर यहाँ रहता है टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम तो फिर शेप से ये करते हैं। ठीक है, और साइज क्या करता है? हर एक एलिमेंट को काउंट करके, अगर 3 रो है और 4 कॉलम है तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 12। ठीक है, 3 into 4, 12 एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमेशा साइज एट्रीब्यूट से हम लोग करते हैं। देखो, अब तुमको क्वेश्चन पेपर पता चल गया है क्या क्या क्वेश्चन आएगा। एक शेप आएगा, एक साइज आएगा, एक काउंट आएगा, एक ऐड करने को कॉलम ऐड करना आएगा, रो ऐड करना आएगा, डिलीट करना आएगा। डिलीट करने का जो मेथड है, हम लोग सारे जो डेल से, पॉप से, फिर ड्रॉप मेथड से, जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं सारे मेथड्स को एक पेज में लिख लेंगे। मीन्स जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं, हेड आएगा, एक टेल आएगा, तो एकदम मतलब 100% जिसमें तुम श्योर हो कि तुमको इसमें नंबर मिल ही जाएगा। जैसे हेड में तुमको नंबर मिल ही जाएगा क्योंकि डेटा फ्रेम का नाम डॉट स्मॉल लेटर में हेड, ब्रैकेट में टॉप से कितने रोज को डिस्प्ले करना है, 2 रोज को करना है तो 2 लिखोगे। अगर उसमें बोला जाएगा बाय डिफॉल्ट उसको छोड़ दो तो फिर 5 रोज, ब्रैकेट को खाली छोड़ दोगे तो 5 रोज डिस्प्ले होगा। टेल में एक नंबर मिल जाएगा, लास्ट के तुम्हारे जो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले, कितने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं वो ब्रैकेट में लिखोगे, और उसके पहले लिखोगे डेटा फ्रेम का नाम। क्वेश्चन पेपर पे ध्यान से देखोगे, डेटा फ्रेम का नाम अगर df1 दिया है तो df1 डॉट टेल ब्रैकेट में कितने रोज, तो ये 100% हो गया। इसके बाद शेप और साइज आएगा ही, शेप में कितने रोज कितने कॉलम्स है, साइज में कितने एलिमेंट्स, ये आएगा ही।
फिर एडिंग अ न्यू कॉलम, एडिंग अ न्यू रो, ये भी आएगा। इसमें सीधे स्क्वायर ब्रैकेट करके भी कर सकते हो, और नॉर्मली हम लोग उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और इसके लिए एलओसी करके हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट, अगर तुमको स्लाइसिंग करने बोलेंगे तो ILOC से इजी होता है। ILOC वाला, अगर कॉलम का नाम से स्लाइसिंग करने बोला है, लेबल से स्लाइसिंग करने बोला है, तो LOC से स्लाइसिंग करोगे। चलो, ऐड अ न्यू कॉलम अभी हमने डिस्कस किया, कैसे ऐड करते हैं। डेटा फ्रेम का नाम डेटा फ्रेम 1 है, कैसे ऐड करोगे? बोलो। डेटा फ्रेम का नाम मैम लिखते हैं। ऑप्शन बी। हाँ, डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट पे कॉलम का नाम लिखते हैं, इन कोट्स, इक्वल्स टू जितने उसमें दिए रहेंगे। अगर टेबल में 4 वैल्यूज दिए हुए हैं तो हम इसमें यहाँ पे 4 वैल्यूज है, तो यहाँ पे भी हम 4 वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आ गया समझ में? तो अब हमको आराम से 100 आउट ऑफ 100 मिल सकता है, क्योंकि हमको क्वेश्चन सब पूरा 100% श्योर है कि ये तो नेटवर्किंग का, ये टर्म 2 के लिए है, अभी हम लोग नहीं करेंगे टर्म 2 वाले। अब ये भी सिलेक्ट क्वेरी जो है वो भी टर्म 2 के लिए है, तो ये भी SQL MySQL, इसको भी अभी हम लोग नहीं करेंगे। ये सारे सिलेक्ट क्वेरीज के क्वेश्चंस है, ये टर्म 2 मीन्स दिसंबर में हम लोग ये सब करेंगे। ये नेटवर्किंग के केस स्टडीज है, इसको भी अभी नहीं करेंगे, ये सारे नेटवर्किंग के केस स्टडीज है। ठीक है, हाँ, पाइप प्लॉट आने वाला है, तो अभी हम लोग पाइप प्लॉट को सॉल्व करेंगे। पाइप प्लॉट के क्वेश्चंस भी पता ही है तुमको क्या लिखा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गौरव हैज रिटन अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ बार प्लॉट एज गिवन बिलो। बार प्लॉट दो तरीके से होता है, या तो डॉट बार या फिर डॉट प्लॉट ब्रैकेट पे टाइप इक्वल्स टू बार। डेटा ये दिया है, ये इसका PLT का टाइटल ये दिया हुआ है, ये वाई लेबल है, ये एक्स लेबल है, ये लेजेंड है, और यहाँ पे मल्टी बार दिख रहा है तुमको। हाँ, फर्स्ट लाइन क्या होता है बोलो? स्टेटमेंट 1, इनपुट पांडा जैसे ये वो है ग्राफ। इनपुट मैटरली बट पाइपलाइन इज सेम। यस, ठीक है। तो थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे मैंने PLT देखा, तो मेरे को यहाँ पे अगर नहीं भी P भी दिखा, कुछ भी दिखा, तो यहाँ ये ग्राफ के लिए है। ठीक है, तो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपप्लॉट एज PLT। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में इम्पोर्ट लिखा हुआ था, तो हमको मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपप्लॉट एज PLT को मार्क करना है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे है, इधर क्या आएगा बोलो? ये तो पता है, सबको पता है। PLT डॉट क्या आएगा? जल्दी, PLT डॉट क्या आएगा? बार आएगा, PLT डॉट बार आएगा इसमें। ठीक है, स्टेटमेंट 3, अच्छा स्टेटमेंट 3 वो लिखा रहेगा क्या लिखना है। ठीक है, तो ये वाले में बार आएगा, PLT डॉट बार आएगा। जहाँ पे लाइन के लिए बोला जाएगा वहां पे हम प्लॉट लिखेंगे, बाकी तो चलो। अब फिल इन द ब्लैंक्स। टाइटल, टाइटल के लिए हम क्या लिखते हैं? PLT डॉट टाइटल। PLT डॉट टाइटल। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट, लेजेंड के लिए क्या लिखते हैं? मैम PLT डॉट लेजेंड। PLT डॉट लेजेंड के लिए। डिस्प्ले के लिए क्या लिखते हैं? PLT डॉट शो। PLT डॉट शो। और सेव करने के लिए सेव PLT डॉट सेव। बस। तो क्या क्वेश्चन आएगा? तो इसमें तो सबको 100 आउट ऑफ 100 फुल मार्क्स इसमें मिल जाएगा, 100% इसका, क्योंकि फर्स्ट लाइन हमेशा यही आएगा, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपप्लॉट एज PLT। फिर बार के लिए बार, हिस्ट के लिए हिस्ट, और लाइन के लिए प्लॉट लिखोगे। फिर टाइटल लिखने का यही रहेगा, लेजेंड का यही रहेगा, शो का यही रहेगा। हाँ, अगर एक्स लेबल वाई लेबल पूछते हैं तो हम एक्स लेबल वाई लेबल या एक्स टिक वाई टिक पूछेंगे, तो ये सबका फुल मार्क्स आ जाएगा।
6 क्वेश्चंस रहेंगे, इसको थोड़ा सा और एक बार प्रैक्टिस कर लेना बस। चलो अब नेक्स्ट क्या आएगा, सीरीज आएगा। सीरीज, डेटा फ्रेम, पाइपलाइन, सोसाइटल, 4 ही टॉपिक आने वाला है एग्जाम में। एनसीईआरटी बुक को पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद जो सुमिता अरोरा है उसमें से अच्छे से देख लो, जितना मीन्स अच्छे से देख लोगे टारगेट तुम्हारा फुल्ली रखना है। चलो, Pushp, a student of class 12th, has been assigned a code to create a panda series S1 as shown below. तो यहाँ पे ये एक सीरीज दिया हुआ है। With reference to the above answer given questions, choose the command that will give the following output: B200 C300। कैसे डिस्प्ले होगा B200 तुम्हारा, ये मेरे को लगता है इसके नीचे आना था, ये थोड़ा सा ना, बी इसके नीचे आएगा। फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा ये कन्वर्ट हुआ है तो इसलिए फॉर्मेटिंग मैं थोड़ा सा एक बार फॉर्मेटिंग कर देती हूँ ताकि तुम लोग को इजीली समझ में आ जाए। ABCDE है क्योंकि ये सीरीज है इसीलिए। ठीक है, ठीक है, तो ये 0th तुम्हारा पहला वाला है, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अब इसमें तुमको खाली ऑप्शन सी। बी और सी, सी। तो यहाँ पे 0 1, हाँ सी, ठीक है, 1:3। तो ये सी स्लाइसिंग से क्या होगा, 0 1:3 मीन्स ये तो डिस्प्ले होगा, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, इंडेक्स सी, ये कौन सा होगा, इंडेक्स सी के लिए सीरीज का नाम S1 है, सीरीज का नाम S1 है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो सीरीज इसमें ऑप्शन, ये आंसर नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, तो सीरीज का नाम S1 है और स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा हम कॉलम का नाम लिखते हैं, तो कॉलम का नाम जो दिया हुआ है स्ट्रिंग के लिए तो हमेशा कोट्स में लिखते हैं, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट, बी और डी। बोलो जल्दी से। डी। डी, एक छोड़ के है इसलिए स्टेप वैल्यू 2 आ गया, 1 से शुरू हो रहा है, 2 छोड़ेगा, ठीक है, 3 में D इक्वल्स टू 400 वो आ जाएगा बस, तो करेक्ट डी। नेक्स्ट, S1 के डिस्प्ले द सीरीज बाय ईच वैल्यू, हर वैल्यू में S1 का 10 ऐड होना है, हर वैल्यू में S1 का 10 ऐड होना है, तो S1 जो सीरीज है उसके ईच वैल्यूज में 10 ऐड होना है, तो 10 ऐड होने के लिए हमको बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांट्स टू डिलीट द वैल्यू अगेंस्ट इंडेक्स डी, हेल्प हिम टू चूज टू डू। ये वाला तो इजी है, ये तो पहले भी तुम किए हो। कौन सा होगा इसका, बी। ड्रॉप फंक्शन है, ठीक है, ड्रॉप फंक्शन है, फंक्शन में हमेशा राउंड ब्रैकेट होता है, तो राउंड ब्रैकेट में देखो एक चीज याद रखना, इसमें जितने भी फंक्शंस हैं जैसे कि ड्रॉप, हेड, टेल, इसमें ये राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस होगा, और जहां पे S1 के साथ उसका कॉलम का नाम लिखना है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, सीरीज के नाम के साथ, डेटा फ्रेम के नाम के साथ वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, और नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। ये ड्रॉप क्या था, एक फंक्शन है, तो इसमें तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। आगे समझ में कैसे, तुमको पहले तो जो रॉन्ग हो रहा है उसको कट कर दो और उसके बाद
एक दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको याद रखने के लिए कि अगर S1 है या सीरीज का नाम है, डेटा फ्रेम का नाम है, उसके साथ कॉलम का नाम यूज करना है तो डॉट करके यूज करोगे या स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर फंक्शन है, मेथड्स है, हेड, टेल, काउंट, ड्रॉप, जो भी फंक्शंस है या मेथड्स है उसके साथ राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस यूज करोगे। ये तो नेटवर्किंग के क्वेश्चंस है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे ही सारे देखो वही सेम साइज आ रहा है, वही सेम क्वेश्चंस है पूरे। साइज, शेप, लेबल चेंज करना, ये इन स्लाइसिंग करना, फिर LOC, ILOC, बस उसी को प्रैक्टिस करने से आराम से फुल मार्क्स आ जाएंगे। आज तो टाइम हो गया है। हाँ, ये मैं शेयर कर दे रही हूँ, इसको भी केस स्टडी वाले को भी शेयर कर दे रही हूँ आज। इसमें तुम लेकिन नेटवर्किंग और MySQL को सॉल्व नहीं करोगे, ये सारे MySQL के क्वेश्चन है, ये टर्म 2 के हैं। तो इसमें ऊपर हम लोग मेंशन कर देते हैं कौन से टर्म 2 के हैं और कौन से MySQL है। ये तुम्हारा टर्म 2 का केस स्टडी होगा, टर्म 2 में आएगा। ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग दिसंबर में करेंगे। ठीक है, वैसे ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ये आएगा टर्म 2 में। तो इसको मेंशन कर दो यहाँ पे कि ये नेटवर्किंग के क्वेश्चन। तुमको अच्छे से डेटा फ्रेम करना है, सीरीज करना है, पाई प्लॉट और सोसाइटल इम्पैक्ट। मैं सोसाइटल इम्पैक्ट्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में फ्रेम करके शेयर कर दूंगी। हाँ, ये वाला है तुम्हारा लिस्ट का या फिर उसका, ये लिस्ट या सीरीज के क्वेश्चंस है, स्कूल करके है। तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको सीरीज के क्वेश्चंस है ये। तो ये तो इजीली ये तो सबसे बन जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में ये कर भी चुके हैं सॉल्व, उसको भी देखने से ऑलरेडी उसका भी रिकॉर्डिंग हम लोग करके रखे हैं, क्लासेस का रिकॉर्डिंग हो ही रहे हैं। ठीक है।